कब तक चलेगा भाई? कितनी बार और होगा? और लिखवाओ भाई, 300 पेज के ऐसे और लिखवाओ। ये सब उसी का नतीजा है भाई। When the punishment is so light, when you can get away by doing all this so easily, not a big deal. If you guys don't understand what I'm talking about, पिछले साल around August September में पुणे में a car accident took place where a 17-year-old boy named Vedant Agarwal was driving his supercar Porsche and he killed 2 people because of overspeeding. And in punishment, the juvenile court let him go by giving him a punishment of writing a 300-word essay. That's it. That's it. भाई क्या हमने वेदांत अग्रवाल की फोटो तक देखी कहीं पे भी? वेदांत अग्रवाल की शक्ल तक बाहर नहीं आई भाई। पैसा इतनी पावरफुल चीज है। Similar to the last year Porsche case, many other accidents to be honest, a similar accident took place on March 14th where a 21-year-old law student named Rakshit was driving his car and he hit 2 scooties and 1 EV. This collision resulted in the death of a woman right on the spot and reported 8 people injured and hospitalized. Man, what the actual it keeps getting worse, man. The woman that died, she was out with her whole family for holy shopping. Holi ka time tha, I think 14-15 March, yes. And this incident took place while they were out together as a family for the preparations of a festival. And this happens. Can you imagine क्या बीत रही होगी उस फैमिली पे? सिर्फ और सिर्फ एक बिगड़ी हुई औलाद की लापरवाही की वजह से। क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों गाड़ियों की चाबी थमा दी जाती है इन लोगों के हाथ में। मेरे को तो रक्षित को देख के ये भी नहीं लगता कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। What's worse is the way Rakshit comes out of the car after the accident and the way he reacts in the middle of the street with absolutely no remorse, no guilt, कोई एक जरा सा भी वो नहीं है कि पछतावा या कहते हैं realization. Look at what he does after he steps out of the car. Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! Another round of what? Do you want to do this whole thing again? Was it fun for you? Is that what you're talking about? Some CCTV footage came out of Rakshit leaving with his friend from his friend's place only, and they're seen going and sitting inside the car. I think this car is a Volkswagen Virtus, if I'm not wrong. I could be wrong. I don't know, for some reason he calls out a girl's name, Nikita. क्या हुआ? Another round, Nikita! Nikita मेरी I could be completely wrong, okay, but as much as I can decode this situation of him stepping out of the car, screaming another round and saying Nikita, मेरे को जहाँ तक लगता है a sober person would not behave like this. पहली चीज तो या तो they are drunk, there was some sort of gathering या party where these people were drinking, because before he sat into this car and started driving it, रक्षित अपने दोस्त के घर से बाहर निकल रहा था, तो या तो कोई house party हो रही होगी. But then again, this incident took place in Vadodara, which is in Gujarat. How are these people getting drunk? Isn't that a dry state? Now what does he exactly mean by another round? ये तो मुझे भी नहीं पता है. Does he mean another round as in like another round of alcohol on the table? Were they drinking before this accident took place? Why did he say the word Nikita? Is there any girl named Nikita in his life that he probably has a relation with, or he had a fight with, that he decided to just go drink and do this, या फिर he wanted to experience this whole accident all over again, that he wants another round of whatever just happened? Does he want another round with Nikita? Sorry, never mind. Still a mystery why he said another round and called out Nikita's name. And no reporter is asking him that. Nobody's asking him. It gets more interesting जब ये नारे लगाने पे आ जाता है भाई एकदम से. ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि धर्म के नाम पे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट आप 2 स्कूटियों को उड़ा के एक इंसान की हत्या करके आपको अगर लग रहा है कि आप ओम नमः शिवाय के नारे लगाओगे तो सब आपके पीछे पीछे चल के आपका साथ देंगे उसमें, जब सबने देख रखा है कि आपने क्या हरकत करी. भाई रिलीजन इज लाइक द मोस्ट अल्टीमेट कार्ड टू प्ले. अल्टीमेट कार्ड टू प्ले. यू वांट टू गेट पीपल टू योर साइड, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग. Bro really thought people will walk behind him in support of him. Nobody will say anything to him. Nobody is gonna question anything to him. He really tried to play the religion card here. This dumbass. भाई अंधभक्त भी इस पॉइंट पे तेरा साथ नहीं देते. इतनी अकल तो अंधभक्तों में भी है, वो भी तेरे साथ नहीं खड़े होते इस पॉइंट पे. भाई देख रहे हो तुम कि थॉट प्रोसेस बंदे का कहां तक गया है. तुम थॉट प्रोसेस तुमने नोटिस किया? पहले फालतू की हरकतें करना शुरू कर दी इसने एकदम. अनदर राउंड. फिर इसको लगा कि ओ शिट भाई ये तो काम नहीं कर रहा, लेट मी जस्ट स्टार्ट चैंटिंग, शायद मैं बच जाऊं. हर जगह थोड़ी ना काम करेगा रिलीजन भाई. ये सारी हरकतों के बाद अगर तुम कह रहे हो कि भाई तुमने कोई नशा नहीं कर रखा था, तुम सोबर थे, तो फिर ये तो हद ही चुत है ना भाई. खैर बहुत पिटाई है लोगों से वहां पे उस दिन. पूरी रात कस्टडी में रहा, पुलिस वाले ने उठा के ले गए भाई इसको. पूरी रात कस्टडी में रखा. उसके बाद अगले दिन मीडिया में पूरी पब्लिक एक स्टेटमेंट निकली जिसमें इनका कहना ये था. सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था. उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया. जैसे एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई. कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी.
आई एम नॉट एट ऑल सैड लुकिंग एट हिज फेस मैन. पनिशमेंट इज सपोज टू बी देयर आई फील ब्रो, क्योंकि पनिशमेंट को ऐसा जोक बना के रखा हुआ है. यू कैन बाय क्राइम दीज डेज ब्रो, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग. So until unless some rich brat, you know, who has a lot of money is not punished, until unless that example is not set, this will continue to happen. 300-word essay was more than enough to make us realize our law and everything is a joke. But guys, don't worry, he just killed a person. He did not crack a joke. Alright, he's no comedian. Come on guys, it's not a national issue. Fuck, he won't even see the jail of the country. All he'll see is probably 5 pages and 1 pen essay of 300 words, which also nobody is gonna read or even count if it's 300 words. Porsche वाले केस में तो मेरे को आज तक ये पता ही नहीं चला कि भाई उसने ऐसे में एक्चुअली में लिखा क्या है. आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने. गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था. गांजा कहाँ लिया था, दारू कहाँ पी थी, पार्टी तो नहीं करी थी, सब ये बिजी पूछने. कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तूने ये सब क्यों चिल्लाया, कि अनदर राउंड, निकिता का नाम क्यों लिया, किसी ने नहीं पूछा ये. और आपको से कितने जब पता है आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था. लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं. और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर. मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है. अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए. तू दुख क्या मनाएगा, तेरे को दुख एक सेकंड के लिए भी नहीं था. तुझे अगर सच में पछतावा हो रहा होता ना, अगर तेरे को सच में रियलाइजेशन होती, तो आई थिंक राइट आफ्टर पहली चीज तो एक्सीडेंट होता नहीं. दूसरी चीज, राइट आफ्टर एक्सीडेंट यू वुड हैव शोड सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट इंस्टेड ऑफ द रिएक्शन यू गेव. एक्टिंग आप कितनी अच्छी करते हो वो तो हमें तभी पता चल गया था जब आप गाड़ी से बाहर निकल के आए थे. ये सब नाटक तो नहीं भाई, ये तो सब लॉयर ने लिख के दिया है इसको, ये तो खुद ही लिख के बैठा है क्योंकि ये भी लॉ स्टूडेंट ही है. तो यू नेवर नो. अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है. अपनी जुडिशरी में बात यहीं पे खत्म हो जाती है. आपका पापा क्या करते हैं? बिजनेस. कोई बात नहीं बेटा, आप 200 वर्ड करवा देते हैं आपके लिए ऐसे. आप 2 करोड़ एक्स्ट्रा दे दो हमें, हम आपके 100 वर्ड कम करवा देंगे ऐसे में. आपकी तो फोटो तक नहीं आएगी न्यूज में. लास्ट टाइम तो जुडिशरी ने ये बोल दिया था कि नहीं भाई माइनर है हम नहीं कर सकते. जुवेनाइल कोर्ट ने उसको 300 पेज ऐसे लिखवा के छोड़ दिया. ये तो नहीं है ना माइनर. मैं अब देखना चाहता हूं कि इसके साथ क्या होगा भाई. मैं अभी बोल दे रहा हूं कि भाई ये बच जाए. या तो ये केस इतना लंबा चलेगा सालों तक कि सब इसके बारे में भूल चुके होंगे. आई एम टॉकिंग अराउंड 10 years. या फिर पापा बिजनेसमैन, पापा हैव मनी, पापा गिव मनी, सन फ्री. और मदर क्या करती है? मदर हाउसवाइफ है. क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम टीना है. माँ बाप के नाम पूछ लिए. सूरज के घर आपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था. तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने. ये पूछ रहे हैं कि आप कल नशे में थे या नहीं. अबे टेस्ट करवाओ ना, ब्लड टेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा कब नशे में था नहीं था. ब्लड में तो मिला हुआ होगा. 40 दिन लगते हैं भाई दारू को निकलने में. करवाओ ब्लड टेस्ट. नहीं. मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है भाई? पुणे वाली केस में जो 2 लोग, जो कपल वो मरा था, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे या कपल थे जो भी थे पोर्शा वाले केस में, उनकी फैमिली आज के पॉइंट तक ये चीज सोचती होगी कि बहन ये क्या सजा है. मसला क्या है कि कोई डर नहीं. और डर कैसे आएगा जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं हो. या तो सेट रक्षित एज एन एग्जाम्पल, ताकि आगे चल के गाड़ी के अंदर बैठने से पहले ये हो कि भाई नहीं भाई, अगर हमने कुछ कर दिया तो हमें ये सजा मिल सकती है. सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है. और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था. उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया. जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई. भाई साहब एक्सक्यूज सुनो. गाड़ी का पहिया पॉट होल पे टच करा, झटका सा आया गाड़ी में, जिसकी वजह से गाड़ी का एयर बैग खुल गया और उसकी वजह से हम कुछ देख नहीं पाए और गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस जाके टकरा गई. वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट्स दे हैव गिवन. तो भाई इस हिसाब से जिस तरीके से हमारे पूरे देश में सड़कें हैं और उन पे गड्ढे हैं, ऐसे तो फिर हर गाड़ी का हर सेकंड एयर बैग खुलना चाहिए. हर रोड पे एक्सीडेंट होने चाहिए, हर मिनट एक्सीडेंट होंगे. फिर तो अगर इतनी छोटी छोटी चीजों पे एयर बैग खुलने लग गया, ऑब्वियस ही बात है किसी को कुछ नहीं दिखेगा, ठुकते रहेंगे लोग. क्या बकवास भाई. क्या सर, चेंज योर लॉयर. आपके पापा बिजनेसमैन है, टेल हिम टू पे मोर. A fucking YouTuber decoded this shit. क्या बकवास पेल रहा है भाई ये. Could have at least cooked something nice man. अब देखना कोई ना कोई एकदम से एक ड्राइवर आ जाएगा स्टोरी कि वो गाड़ी चला रहा था. देखना जैसे एग्जैक्टली वो पुणे वाले केस में हुआ था. Some random person was paid money to take the blame. जैसे ही पैसा क्रेडिट होगा, देखना कैसे लॉ बेंड होना शुरू होगा. What amazing story they will cook and they will sell it. They won't even care of what people are gonna say. They'll just put it out there कि हाँ भाई ये क्या कर. क्या एक हफ्ते बाद तुम लोग वैसे भी इसके बारे में ना पूछने वाले हो ना सोचने वाले हो. ये सुनो, लो, जाओ, मरो.
यही होगा। चलो मान लिया कि पॉट होल की वजह से आपका एयर बैग नहीं खुला, पॉट होल के बाद आपकी गाड़ी किसी जाके लगी और फिर आपका एयर बैग खुला। मेरे भाई 50 की स्पीड पे कोई भी गाड़ी पॉट होल को टच करके डिसबैलेंस तो नहीं हो, सॉरी नहीं होने वाली भाई। 50 kmph is not that much of a speed, to be very honest. Then this guy went ahead and said something about cars which made me believe it completely that this guy is fucking bullshitting. He said that this car was automatic and he can't handle automatic gears. Brother, there is nothing that you need to handle or control in an automatic car when it comes to gears. Dumbass. There is no clutch also in an automatic car. The only thing you need to control is the accelerator, brake and the steering wheel, which you couldn't do. Rakshit, either you are dumb or your lawyer is trolling you, telling you to say all this on national television. But I feel the former is more plausible because if you weren't dumb, you wouldn't be in this situation. Now let's see what happens, bro. I'm very excited, very curious to know how they're going to bend the rules, how they're going to save his ass now. Let's see. क्या इसको सजा मिलती है या फिर वेदांत अग्रवाल की तरह ये भी 2 हफ्ते में चिल हो जाएगा एकदम सब 2 हफ्ते में फ्री. Anyways man, the victims are in my prayers, sending more strength and power to them. I hope justice is served man. That's all I can hope for, that's all we can hope for. You know, hopes तो है नहीं to be honest, but कोई चमत्कार हो जाए कि सजा मिल जाए, शायद कुछ चेंज हो सकता है, वरना फिर ये सारी चीजें तो कंटिन्यू होती रहेंगी. होप दिस टाइम जुडिशरी डजंट डिसअपॉइंट, द लॉ डजंट डिसअपॉइंट, द मीडिया डजंट डिसअपॉइंट. You guys tell me man, what do you guys think about this whole situation in the comments, bro? Let me know man. I want to know your opinion on this whole thing as well, you know. That's all for this video man. I hope you guys learned something from it. Guys, please, for on my channel as well, I'm saying it again, drunk driving, over speeding, not wearing seat belts, doing stunts on the road, putting your life in danger, putting other people's life that are driving on that road in danger is not worth it. It's not making you look cool. It's not increasing your aura points. I don't know what you try to chase, that adrenaline rush or that dopamine. No, it's not worth it. I've lost a friend in a car crash. I know how it feels. It's not cool, man. It's not cool. Please don't do it. Just think about your life. Just think about your parents once before you do all this. I'll see you all in the next video, man. Till then, please take care. Stay safe. थोड़ा सा precaution, थोड़ा सा ध्यान रखो when you're driving. When you're on the street, be aware of your safety around 360. क्योंकि अगर तुम भी गलत नहीं हो तो ऐसे लोग तो हैं ना भाई, रक्षित जैसे लोग जो आके कभी भी उड़ा के जा सकते हैं. थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा सा केयरफुलनेस ब्रो. देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डू. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ मैन. टिल देन प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ. बाय बाय.